नजरें ना उठा पाए। کہ رسول پاک کا جام پلانے والے شعراء کرام، جملہ سامعین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ باوقار سامعین، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے منبر رسول پر اپنے علاقے کے چیدہ علماء، خطبہ، شعراء، ادباء، نقبہ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ جس ثناخان مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا، چند باتیں بغور سماعت کر لیں، اس سے پیشتر آئیے جی لگا کے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہماری قوم کے نوجوان اس طریقے کے ہنگامے کرتے ہیں، اس طریقے سے شور و گل کرتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جلسے بہار اور بنگال میں ہوتے ہیں، لیکن آج تک ہمارے لوگوں کو جلسہ سننے کا شعور تک نہیں آیا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جلسہ کس طریقے سے سنا جاتا ہے، بالکل۔ تقریر کس طریقے سے سنی جاتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، یہاں کی بھیڑ دیکھ کے مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، یہاں کی بھیڑ دیکھ کے میں عرض کر رہا تھا کہ افسوس ہوتا ہے جب اپنے علاقے کا، آپ کے علاقے کا ماحول دیکھتا ہوں، خاص کر نوجوانوں کے تئیں ہمارے نوجوان کس طریقے کی ہلڑ بازی کر رہے ہیں، اور جلسے میں آنے کے بعد کس طریقے سے تماشا کر رہے ہیں، یہ افسوس ہوتا ہے۔ پوری سچ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف تبلیغ کے لیے جلسہ رہ گیا تھا، صحیح بات ہے۔ مدرسے رہ گئے ہیں، مدرسوں کے حال آپ اور ہم جانتے ہیں، مدرسوں کے حالات سے واقف ہیں۔ جلسہ بچا ہوا تھا، جلسے کا معیار بھی ہم نے ختم کر دیا۔ مسجد میں خطاب بچا تھا، مسجد کا خطاب بھی ہم سننا نہیں چاہتے۔ اگر یہی حال رہا تو یاد رہے اس قوم کو سمجھانے والا کوئی نہیں آئے گا، صحیح بات ہے۔ قوم کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، قوم کو دین سکھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اسی لیے جلسوں کی قدر کرو، جلسوں کی اہمیت کو سمجھو، جلسوں کو بغور سنو، علماء کی باتیں سنو، علاقائی علماء سے مشورے لے کے جلسے کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ تعالی جلسے جیسے بھی ہو، کامیاب جلسے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جلسے ہوں گے، لیکن سود مند جلسے ہوں گے۔ اسی لیے جلسوں کے معیار کو ٹھیک کرو۔ افسوس ہوتا ہے یہاں کی بھیڑ دیکھ کے کہ کل تک ہمارے نوجوان اکٹھا نہیں ہو پا رہے تھے۔ مفتی سلمان ازہری ناموس مصطفیٰ پہ بولتے بولتے انہیں قید کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن کسی نوجوان کی زبان سے بولی تک نہیں نکلی۔ آج جلسہ سجایا گیا تو سب کے سب شبیر برکاتی کو سننے کے لیے آ گئے، سب کے سب نعت خوانی سننے کے لیے آ گئے۔ یاد رکھنا، اگر تم اس طریقے سے نعت مصطفیٰ پڑھنے والوں کے پیچھے بھاگتے رہے، عالموں کی قدر نہیں کی تم نے، عزت نہیں کی، ناموس پر پہرا دینے والوں کی اگر تم نے عزت نہیں کی تو کل کوئی مصطفیٰ کی عزت پہ بولنے والا نہیں ہوگا، کل کوئی دین اسلام پہ بولنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ تم وہاں کھڑے رہو گے جہاں پہ مصطفیٰ کی بات کی جائے گی، جہاں ناموس کی بات کی جائے گی، تم کھڑے رہو گے۔ تمہاری ذمہ داری بنتی تھی کہ سلمان ازہری کے لیے تم کھڑے ہوتے، لوگوں کو بتاتے کہ ہم سلمان ازہری کے ساتھ ہیں، اپنی طاقت کا
सपोर्ट किया, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी का किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें किसी ने वोट नहीं किया, उनका किसी ने समर्थन नहीं किया, उनके लिए किसी ने एहतजाज नहीं किया, उनके लिए किसी ने आवाज तक बुलंद नहीं की। याद रखना, अगर यही हाल रहा तो कर तेरे दीन पे कोई बोलने वाला नहीं होगा, इस्लाम पे कोई बोलने वाला नहीं होगा, शरीयत पे कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए अपना मेयार ये बनाओ कि कष्ट तो दे है, भी ना छोड़े, अपने पहले जुल्मात में पाबंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान ताजुशरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम अगर खड़े रहोगे नामूस मुस्तफा पर पहरा देने वालों के साथ, तो कोई एक लफ्ज मुस्तफा के खिलाफ नहीं बोल सकता, मुस्तफा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। आज हम अपने मोहसिनों का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, ये कुफार उन्हें जेल में डाल देते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने मोहसिनीन का सपोर्ट करें, अपने इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम को फरोग देने वाले मुबल्लिगीन का सपोर्ट करें और अपने मियार को इस तरीके से बरकरार रखें कि सब लोग मुस्तफा जाने रहमत की नामूस की बात करें। जवानों, तुम्हें अपनी जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि तू हुल्लड़बाजी में खत्म कर दे, तू शराब पी के खत्म कर दे, तू नशा करके खत्म कर दे, तू जुआ खेल के खत्म कर दे। नहीं नहीं, तेरी जवानी इसलिए दी गई है तू इस्लाम को फरोग दे, तू दीन की खिदमत करे, तू दीन को आगे बढ़ाए, तू इस्लाम की इज्जत करे, इस्लाम के मानने वालों की इज्जत करे। तुम्हें जवानी इसलिए दी गई है। आज इलाके का हाल देखिए, खास करके बिहार और बंगाल का हाल। हमारा बेटा अगर 2 रुपए कमाता है दिल्ली में जाके तो शराब पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, बियर पीने लग जाता है, दारू पीने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, सट्टा खेलने लग जाता है। जवानों, तुम्हें इसलिए जवानी नहीं दी गई है कि तू शराब पिएगा, बल्कि तुझे जवानी इसलिए दी गई है तू मुस्तफा की बातें करे, और तुझे दिल इसलिए नहीं दिया गया है कि तू लड़की से लगाए और आवारागिरी में इस दिल का गलत इस्तेमाल करे, बल्कि तुम्हें तो दिल इसलिए दिया गया है मुस्तफा जाने रहमत के ताल्लुक से और इश्क़ मुस्तफा के ताल्लुक से। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। इसलिए जवानों, अपनी जवानी का ठीक इस्तेमाल करो, इस तरीके से वक्त को बर्बाद मत करो। और आपके इलाके वालों को जरूरत है, जलसा जुलूस अपनी जगह है, अब मकातिब पे ध्यान दे, मदारिस पे ध्यान दे। आज देखें मकातिब के हालात कैसे हैं, मस्जिदों के हालात कैसे हैं, मदरसों के हालात कैसे हैं। आज तक हमारा मदरसा सदका और खैरात पे पल रहा है, हमारी मस्जिदें न जाने किस तरीके से चल रही है। 1 महीना इमाम साहब की तनख्वाह देते हैं, 2 महीने तक रोक के रखते हैं, हमारे पास पैसों का इंतजाम तक नहीं होता है। इसलिए जलसा व जुलूस अपनी जगह है, अब जरूरत है बिहार और बंगाल के लोगों को अच्छे इदारे कायम करने की जरूरत है। हमारे पास अच्छे स्कूल हो, जरूरत है हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी हो, जरूरत है हमारे पास अच्छे मदरसे हो, ताकि जमीनी सतह पे काम हो। हमारा बेटा स्कूल में पढ़ के मास्टर बने, मदरसे में पढ़ के आलिम रब्बानी बने, वो कानून भी जाने, मुस्तफा का दीन भी जाने, कानून भी जाने, मुस्तफा की शरीयत भी जाने। जब इस तरीके से तुम जिंदगी गुजारोगे और अपने पैसे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के लिए करोगे, स्कूल के लिए करोगे, बड़े इदारों के लिए करोगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे सब बच्चे अपने इलाके में आलिम और हाफिज बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, फासिल बनेंगे। ये कब होगा? जब अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करोगे। ये कब होगा? इसीलिए अब जरूरत है हमारे इलाके वालों को, सीमांचल वालों को, बिहार वालों को, बंगाल वालों को कि अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करें, अपने मदरसों का हाल बेहतर करें, मकतबों का हाल बेहतर करें। देखो तो सही मकतब के हालात कैसे हैं। एक स्टाफ है, 8,000 रुपए में हमने एक स्टाफ को रख लिया है, उसे 8,000 रुपए महीना देते हैं। एक स्टाफ कितने बच्चों को पढ़ाएगा? 50 बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। दिन भर में कितने बच्चों को पढ़ाएगा? लेकिन उनकी जिम्मेदारी में हम 2300 बच्चे दे देते हैं, वो पढ़ाएंगे तो किस किस को पढ़ाएंगे? इसलिए अब जरूरत है कि तुम्हारे मकतबों में ज्यादा से ज्यादा मुदर्रिसीन हो। 25 बच्चे एक मुदर्रिसीन के अंडर में हो, उन्हीं के मातहत हो, 25 बच्चों को एक मुदर्रिस पढ़ा पाएगा। इस तरीके से अब
اپنے مکاتب کے حالات کو بہتر کرو، مدرسوں کے معیار کو بہتر بناؤ، پھر دیکھو تمہارے جلسے میں کوئی خطیب آ کے 1 گھنٹہ گفتگو کرے گا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب تمہارے مکتب اچھے ہوں گے، تمہارے مدرسے اچھے ہوں گے تو 1 گھنٹہ نہیں بلکہ ہزاروں تقریر کرنے والے پیدا ہوں گے، ہزاروں اصلاح کرنے والے تمہارے گاؤں سے پیدا ہوں گے۔ کیا بات ہے، آئے آئے آئے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے معیار کو بہتر کرنے کی، ضرورت ہے اپنے پیسوں کا ٹھیک استعمال کرنے کی۔ کبھی سوچا آپ کے کتنے اسکول ہیں خود کے، آپ کے کتنے بڑے ادارے ہیں خود کے، آپ کے کتنی کالجز ہیں خود کے، آپ کی کتنی یونیورسٹی ہے خود کے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پیسے ان چیزوں میں لگائے نہیں ہے، ہم نے اپنے پیسوں کا استعمال فلاحی کام کے لیے کیا نہیں ہے، صرف جلسہ و جلوس کرتے آئے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر یوں ہی جلسہ و جلوس میں پیسے برباد کرتے رہے، میں یہ نہیں کہتا جلسہ و جلوس نہ کرے، کرے جلسہ و جلوس، لیکن اپنے پیسوں کا استعمال اداروں کے لیے لگائے، مکتب کے لیے لگائے، مدرسوں کے لیے لگائے، تاکہ آپ کا سماج علمی اعتبار سے مضبوط ہو، علمی اعتبار سے طاقتور ہوتا ہو نظر آئے۔ بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، زندہ باد زندہ باد۔ اور مزاروں کے حالات تو اور بھی بگڑ گئے صاحب، مزاروں کے حالات، ایک مزار ہم نے بنا لیا، اب اس پہ آئے دن چادر پہ چادر، گل پوشی پہ گل پوشی، نہ جانے کون کون سی چیزیں۔ مزار کا مخالف نہیں ہوں میں مزار کاگر عرس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو ہمارے یہاں کا رویہ ہے مزار کے ساتھ کہ مزار ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اور ہر بار عرس میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور عرس والوں کی طرف سے کوئی بھی فلاحی کام نہیں ہوتا، دینی کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اب ان چیزوں پہ بھی قدر لگانے کی ضرورت ہے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کے ان چیزوں کو انجام دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے پیسوں کا ٹھیک استعمال ہو، ہماری چیزوں کا ٹھیک استعمال ہو۔ ہمارا سماج پیسے کہاں کہاں برباد کر رہا ہے، جب سماج کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے نوجوان اپنے پیسوں کو کہاں کہاں برباد کر رہے ہیں، جب ہم ان کے گھر کا جائزہ لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے ماں باپ 1-1 روپے کے لیے تڑپ رہے ہیں، چند روپوں کے لیے مر رہے ہیں، کسی کے باپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کسی کی ماں کے پاس پہننے کے لیے ساڑی نہیں، کسی کے باپ کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے جوتے نہیں، کسی کی ماں کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں۔ یہ ہمارے سماج کا حال ہے، لیکن ہمارے سماج میں پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، غریبی دیکھنی ہے تو کبھی ٹھنڈ کے موسم میں چلے جانا، کسی چوراہے پہ جا کے دیکھنا، ایک 65 سال کا بوڑھا ٹوٹو چلا تھا ملے گا۔ آپ نے کبھی تصور کیا، کبھی سوچا کہ 65 سال کا بوڑھا ٹوٹو کیوں چلا رہا ہے، 80 سال کا بوڑھا گاڑی کیوں چلا رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا ٹوٹو کیوں چلا رہا ہے؟ یہ تو ٹھنڈ کے موسم میں رضائی کے اندر بھی ٹھیک سے کروٹیں نہیں لے پاتا، ٹھیک سے کمبل کے اندر سانسیں نہیں لے پاتا، یہ ٹوٹو کیوں چلا رہا ہے؟ یہ میرے سماج کی غریبی کی عکاسی ہے، سماج کی غریبی کی تصویر ہے۔ دیکھیں تو صحیح سماج میں غریبوں کا حال کیا ہے۔ اگر غریبی دیکھنی ہے تو کبھی چلے جائے، وہ جو چھوٹا والا بینک ہوتا ہے جسے CSP کہا جاتا ہے، وہاں چلے جائے، ایک بوڑھا ڈیلی آتا ہے، بوڑھا اس طریقے کا ہے کہ اسے اگر کوئی ایک دھکا دے دے تو وہ کئی دھکے کھائے گا۔ ایک بوڑھا آتا ہے، بوڑھا آنے کے بعد اس CSP والے سے بار بار کہتا ہے بیٹا میرا اکاؤنٹ چیک کر لینا، وہ چیک کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے کوئی پیسے نہیں آیا ہے۔ وہ بوڑھا آ کے چیک کراتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے 400 روپے ماہانہ جو آ رہے تھے وہ پیسے آئے ہیں کہ نہیں، وہ آ کے بار بار چیک کراتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا یہ نوبت کیوں آئی ہے، یہ سماج میں یہ حال کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی پیسوں کا ٹھیک استعمال نہیں کیا ہے، ہمارے پیسوں کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا ہے، سماج میں غریبی سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ اس کی ضرورت ہے، مزارات اپنی جگہ ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کو راضی کر لو، صاحب مزار راضی ہو جائیں گے، تمہارا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ امین الدین قادری منظری۔ اور کہاں کہاں فضول خرچی کرو گے، کہاں کہاں علاقے میں فضول خرچی دیکھنی ہے، برات میں چلے جاؤ، صحیح 1-1 لاکھ روپے کا کھانا برباد ہوتا ہے صحیح بات۔ برات میں، برات کے نام پر کئی لاکھ روپے ہمارے جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایک غریب باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ بیچ باچ کر جہیز دیتا ہے شادی طے ہونے کے لیے، شادی مکمل ہونے کے لیے، رشتہ مکمل ہونے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہمیں غریب باپ کے، غریب بیٹی کے باپ کی گلے پہ چھری پھیر دیتے ہیں۔
कई सौ बराती ले जाके 500 बराती, 400 बराती, 300 बराती, ये कब तक इलाके में होता रहेगा? आज आपकी बेटी की शादी है, 300 बराती आएंगे, आपको इंतजाम करने में कितनी दिक्कतें होगी, कितनी परेशानी होगी। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी बेटी की शादी के लिए लगा देता है, पूरी जिंदगी बाहर गुजार लेता है बेटी की शादी के लिए, ताकि बेटी की शादी हो जाए, बेटी के जहेज का इंतजाम हो जाए। लेकिन तुम मैं अर्ज कर रहा था कि कब तक इतने पैसे बारात के नाम पे खत्म होते रहेंगे। एक बाप ने कितनी मेहनत और मशक्कत करके बेटी की शादी का इंतजाम किया, जहेज का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, सारा सामान उन्होंने इकट्ठा किया अपनी बेटी की शादी के लिए। फिर भी हम बारात में 400-500 बाराती ले जाके एक गरीब बाप के गले पे छुरी फेरते हैं, उनका जीना दोबर कर देते हैं। आप क्या चाहते हैं कि एक गरीब बाप बेटी की विलादत के बाद फांसी के फंदे में लटक जाए, फांसी के फंदे में लग जाए जाके? यही आप अगर चाहते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि कल तक लोग, ऐसा दिन आएगा कि कल तक लोग जिसके घर में बेटियां पैदा होगी उसका बाप अपने गले में फांसी का फंदा लटका लेगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं बेटी के रिश्ते के लिए, बेटी की शादी के लिए। अब उनके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए इलाके वालों को जरूरत है कि शादी के खर्च को कम किया जाए, बारात का सिस्टम खत्म किया जाए, जहेज का मामला खत्म किया जाए। अब आसानी के साथ शादियां हो, मुकम्मल सिंपल तरीके से शादियों का एहतमाम किया जाए। जिस तरीके से फातिमा की शादी हुई थी, मुस्तफा जान रहमत की शादी हुई थी, हजरत आयशा की शादी हुई थी, उस तरीके से शादी का एहतमाम किया जाए और मस्जिद में बैठ के शादी किया जाए, निकाह किया जाए। जब इस तरीके से निकाह किया जाएगा, ये समाज सुधरता हुआ नजर आएगा और हजारों गरीब की बेटियों की जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी, हजारों बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर। अरे इधर देखो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन कादरी बंसरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने दीजिए उनको, आने दीजिए, आने दीजिए। ओ भैया बैठ जाओ मेरे भाई, मेरा दिल का टुकड़ा, कलेजा, फेफड़ा, रीढ़ की हड्डी, बैठ जाओ यार। ये देखिए इंटरनेशनल सनाखा ने मुस्तफ़ा हजरत शब्बीर बरकाती साहब क़िबला मिंबर रसूल पे जलवागर है। चंद बातें मेरी और सुन लीजिए, बस मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम के और लेके जा रहा हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे इलाके में जो शादियों का माहौल है। ओ भैया भैया बैठ जाओ, क्योंकि तकरीर बड़ी अच्छी हो रही है। इस वक्त जो तकरीर होनी चाहिए जलसों में वो तकरीर हो रही है, जलसों में जो तकरीर होनी चाहिए वो तकरीर हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है हजरत। ओ भैया बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। इस वक्त शादी के ताल्लुक से जो तकरीर आपको सुनना है, हजरत शब्बीर रज़ा बरकाती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, वरना क्या लेके जाएंगे यहाँ से क्या लेके जाएंगे? तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जगह हो तो बैठिए, नहीं तो आप जैसा चाहे खड़े रहिए। कमेटी वाला भाई आपसे गुजारिश है, आप मोहब्बत के साथ पेश आए। मैं अर्ज कर रहा था कि शादियों का जो हाल है हमारे इलाके में, उन शादियों पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। जो हालात है उस तरीके से शादियां ना हो, बल्कि सुन्नत तरीके से शादियां हो। मैं अर्ज कर रहा था कि बारात का सिस्टम आखिर क्यों खत्म नहीं होगा? आप चाहेंगे तो खत्म हो सकता है। अब बारात का सिस्टम नहीं, बल्कि 10-15 लोगों को ले जाके शादी करके आए। जब बारात का सिस्टम खत्म होगा, जहेज का मामला खत्म होगा, डिमांड का मामला खत्म होगा, फिर बेटियों को कोई बोझ नहीं, खुदा की रहमत समझ के पालेगा, खुदा की रहमत समझ के शादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। और जुल्म तो ये है, जुल्म वाला है जुल्म, कि शादी के बाद
हम 12-15 लोगों को लेके चौथाई खाने के लिए आ गए। अफसोस होता है एक बाप अभी बेटी को जहेज दे के उठा है, कितना माल खर्च किया है, कितने पैसे खर्च किया है, अभी शादी हुई है, कर्ज लेके उन्होंने शादी दिलाई है, लेकिन हम हैं कि फिर चौथाई के नाम पे 10, 12, 15, 20 लोग आ गए, आके हफ्ता 10 दिन रह जाते हैं, इनके घर आके मेहमानदारी खाते हैं, आके रह जाते हैं। और इस रस्म की वजह से इलाके में बेहयाई बढ़ रही है, क्योंकि मर्द औरत का खल्तबंद होता है, मर्द का इख्तिलात होता है, जिसकी वजह से बेहयाई फरोग पाती है। इन रसूमात को सिरे से खत्म करने की जरूरत है, शादियों को सेफ करने की जरूरत है। जिस तरीके से मुस्तफा ने शादी की थी, हजरत आयशा की शादी हुई थी, फातिमा की शादी हुई थी, अली की शादी हुई थी, जब इस तरीके से मस्जिद में बैठ के शादियां होगी, हजारों गरीब की बेटियां तुम्हें दुआ देती हुई नजर आएगी, हजारों गरीबों का मुकद्दर संवरता हुआ। इसलिए जरूरत है। अरे वाह। और सुने, हल्दी के नाम पे जो बेहयाई फरोग पा रही है, हल्दी के नाम पे उलमाए किराम, आपके इलाके के जुमला उलमाए किराम, ये कदावर उलमाए किराम, जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। और मैं जानता हूं ये गांव हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब कुल्ला और मुफ्ती अय्यूब आलम साहब कुल्ला का है। ये बड़े बड़े उलमा, हमारे सर के ताज, ये उनका गांव है। यहाँ पे अगर इस तरीके से हुल्लड़बाजी करके आप जलसा सुनेंगे तो लोग क्या तासुर लेके जाएंगे। अफसोस होता है, तुम्हें अब यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है, अब मस्जिदों में भीड़ की जरूरत है, अब मदरसों में भीड़ की जरूरत है। तुमने मस्जिद को छोड़ा, तुम्हारे हाथ से मस्जिदें चली गई, उधर बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद चली जा रही है, वहां पे पूजा की इजाजत दे दी गई है, न जाने कौन कौन की मस्जिद में कुफारों की नजरें टिकी हुई है। अगर तुमने यही किया, सत्य को आबाद किया और मस्जिदों को वीरान किया, कल ऐसा ना हो तेरे मोहल्ले की मस्जिद चली जाए, तुझे आसान पे पाबंदी लगा दी जाए, लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगा दी जाए, सलात और सलात पे पाबंदी लगा दी जाए। इसलिए जरूरत है कि मस्जिदों को आबाद करो। अब तुम्हें जैसे भी नहीं, बल्कि फजर की नमाज में इतनी भीड़ और इतनी तादाद की जरूरत है। जब मस्जिदों को इस तरीके से आबाद करोगे, तुम मस्जिदें आबाद करोगे, इंशाअल्लाह ताला इस्लाम फरोग पाता हुआ है। खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए भाईजान, खड़े हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए ताकि सब लोग एक बार बैठ जाएंगे। खड़े हो जाए, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताज शरीया, नारे तकबीर। अब सारे लोग एक साथ बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए अपनी जगह। भाईजान जहाँ जिसको जगह मिली बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, बैठ जाए। साहिबो, मैं आपके मुस्तकबिल की मुस्तकबिल की बातें कर रहा हूँ। कल ऐसा ना हो कि तेरी मस्जिदें हाथ से चली जाए, तेरे मदरसे हाथ से चले जाए। इसलिए जरूरत है कि मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, ताकि कोई बातिल ताकत तेरी मस्जिद की तरफ नजरें ना उठा पाए, कोई गैर तेरे मदरसे की तरफ नजरें उठा के देख ना पाए। मस्जिद और मदरसों को आबाद करो, मजबूत करो, अपने इलाके के मदरसों को मजबूत तरीन बनाओ, ताकि आपका बेटा बरेली शरीफ पढ़ने नहीं बल्कि फैज हासिल करने के लिए जाए, आलिम की पढ़ाई तुम्हारे गांव में करके जाए, हाफिज की पढ़ाई तुम्हारे इलाके से करके जाए। ये कब होगा? जब मदरसे मजबूत होंगे, जब मकातिब मजबूत होंगे, ये तब होगा। और सुनो, मेरी माँ और बहनें भी पर्दे में रह के सुन रही है, और आप भी आए हैं। आपको लगता है ना आपका बंगाल बहुत तरक्की कर लिया, बिहार बहुत तरक्की कर लिया, दीन भी बहुत तरक्की कर लिया, आपको लगता होगा। लेकिन तरक्की के साथ साथ तुम्हारे समाज वालों ने जिना के अड्डे भी कायम कर दिए, शराब के अड्डे भी कायम कर दिए, ताश के अड्डे भी कायम कर दिए, जुआबाजी के अड्डे भी कायम कर दिए। तुमने देखा नहीं कि हमारे इलाके में, खास करके आप अगर बिहार और बंगाल का जायजा ले, सीमांचल का जायजा ले, तो इलाके में कितने होटल खुल गए हैं, तुम्हारे इलाके में कितने होटल खुल गए हैं। और होटलों के बारे में बताया जाता है, एक शख्स ने मुझे आज ही बताया कि हजरत हमारे इलाके में जितने होटल खुले हैं, वहां पे हमारी बेटियों के साथ जिना बिल रिजा हो रहा है। मैं आपसे खिताब इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके कान में ये बात चली जाए, आप अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बेटी कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, स्कूल के नाम पे कहां जा रही है,
रोशन के नाम पे कहाँ जा रही है? ये आपकी जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है। बेटी से पूछे, बेटी तेरे सर पे नया दुपट्टा आया कहाँ से? हमने खरीद के लेके नहीं दिया। एक माँ की जिम्मेदारी है। बेटी से पूछे, तेरे पैर में नए जूते आए कहाँ से? हमने खरीद के नहीं दिया। तुम्हारे बदन में लिबास आया कहाँ से? हमने तो खरीद के नहीं दिया था। यह आपकी जिम्मेदारी है। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो, वरना इनकी कोख से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा। ज़िनाकार पैदा होंगे, नाचने वाले पैदा होंगे, मुजरा करने वाले पैदा होंगे, डांस करने वाले पैदा होंगे। चाहते हो इनकी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, इस्लाम का मुहाफिज पैदा हो, दीन का मुवल्लिद पैदा हो, तो जरूरी है अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। इन्हें फातिमा का पर्दा बताओ, फातिमा की हया का दर्स दो, इन्हें सीरत मुस्तफा पढ़ाओ, सीरत फातिमा पढ़ाओ। क्योंकि जब ये ठीक होगी, कुरान पढ़ के सोएंगी, फजर पढ़ने उठेगी, तो इनकी कोख से जब बच्चा पैदा होगा वो मुस्तफा का गुलाम पैदा होगा, वो गौसे आज़म का दीवाना पैदा होगा, फिर समाज में इनकलाब पैदा होगा। तुम भी कामयाब हो जाओगे, आने वाली नस्लें भी कामयाब होगा। आखिरी बात सुने, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया था तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा गया था कि हुजूर इतनी ताकत बदन में आई कहां से? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि तुम मेरे बदन की ताकत पे हैरत ज़दा हो। ये ताज्जुब की बात नहीं है। एक सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रहे हो, तुम मुझे माए अच्छी दो, बेटियां अच्छी दो, तुम्हें हम एक नहीं बल्कि हर घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी देंगे। हर घर में मुस्तफा के दीन का मुहाफिज पैदा होगा, हर घर में इस्लाम का मुवल्लिद पैदा होगा। इसलिए साहिबों, अपनी ताकत का ठीक इस्तेमाल करो, शराब में नहीं, बियर में नहीं, बल्कि मुस्तफा की दीन के लिए इस्तेमाल करो, मुस्तफा की शरीयत के लिए इस्तेमाल करो, फिर हर जगह कामयाब हो, कामरान हो जाओगे। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई। अगर वो हो गए अपने रहमत परवरदिगार अपनी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।